Hello and welcome to The Print. We have with us Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat. Welcome to The Print, sir. Namaste. You have been doing one sabha after the other. We saw that how Ashok Gehlot's son, Vaibhav Gehlot, whom you defeated last time, has opted out of the race. How do you see this as far as the Congress is concerned? See, last elections, Vaibhav Gehlot was contesting against me. He was launched against me. But since the mood of the people of the country and Rajasthan as well and Jodhpur as well was very crystal clear, and loud and clear message was there from the public that they want to get one more chance to Narendra Modi ji on behalf of the works what he has done for the Garib Kalyan and also for the national security and enhancing the image of the country across the world. So people voted for Narendra Modi ji, people voted for us, and this time again the situation is absolutely same. India, the people of India, they are pretty sure and confident that if Viksit Bharat can be made at this moment, the only person who can drive this is Narendra Modi ji. You were given the charge of Modi government's flagship Jal Jeevan mission. I mean, you're still the minister. How do you see the work that has been done? What all has been left? And at the same time, one criticism that comes your way is that being the the Jal Shakti minister, why is Rajasthan still reeling under water crisis? Why could you not do something about it? See, when Honorable Narendra Modi ji got the second chance and he was given the second chance by the people of India, he declared before the elections also he has cleared that an integrated ministry for the water is going to be formed, and I am so fortunate that I have been given this chance for the first integrated ministry to run the first integrated ministry. And the flagship program of giving drinking water to each and every household, which was announced by Honorable Prime Minister on 15th August of 19 from the ramparts of Red Fort. Honorable Prime Minister, in that iconic speech, he made the statement that in last almost 72 years, the government in India, they have worked for providing drinking water. The various state governments have also done a rigorous job, and some local governments have done also their efforts. But despite all efforts of 72 years, only 16% of the total households are getting water through taps in their homes. It is a mammoth task, he said, that whatever has been done in last 70 years, we have to do 5 times more than that. Right. But still, he has expressed his commitment that by next 5 years, we will be completing and we will be providing water to each and every household. We all are aware that it's a state subject. Ultimately, states has to do it right from the DPR preparation to implementation to operation and maintenance. Everything is to be done by the states. And each and every state had its own priorities, their own situation, availability of water. Everything was different for all the states. So we sat with all the states, we discussed at length, we have assessed their capabilities, their requirement, their zeal to work, and finally issued a guideline. And that is probably for the first time, if I can remember, that Honorable Prime Minister himself have launched that guideline on 25th of December on the Sushashan Day, that Atal Bihari Vajpayee's Janmat Divas from Vigyan Bhavan in Delhi. That was the triggering point where we have started and we have initiated this Jal Jeevan mission. Right after 3 months, 25th of March 2020, if you can remember, the lockdown was imposed because of the COVID-19. And post that lockdown, almost a year and a half or 2 years, they were compromised, the performance was compromised, though it was the driving force of Narendra Modi ji who motivated, kept us motivated, who asked us to work, and the drinking water related programs were allowed during the lockdown period also. But still,
There were supply chain eruptions also were there. They were noticed. And post that, this war had happened, so prices have gone high because of Russia-Ukraine war. The plastic cost was gone very high. The steel supply chain was disrupted. But despite all odds, I can proudly say that the coverage which used to be 16%, which we could arrive after 72 years, as on date the coverage in the country is 76%. So 16 to 76, it's a quantum jump in a period over less than 4.5 years. Still the mission period is going on. Till the end of this year, the mission period is on. 12 states have achieved 100% its status, and 10 odd states almost have achieved more than 85 or 90% marks, 90% to between 90 and 100% mark. Unfortunately, as you have asked, that my own state, the state of Rajasthan, Yeah. that has become the poorest performer state among the all 32 states where the work was going on. So all 32 states, the two poorest performing states were Rajasthan and West Bengal. You know, obviously West Bengal was the reason that initial 3 years they didn't do anything because of the political their interest. And in state of Rajasthan also, we have given the highest budgetary resources to the state of Rajasthan. The highest cost for per capita connection was there in Rajasthan. Rajasthan, which used to provide somewhere around less than 1 crore of connection, and the total projects were sanctioned of worth rupees 1 lakh crore. So average cost was 1 lakh rupees per connection, but still, despite given all budgetary resources, 27,000 crores rupees in 4 years, they could spend only 6,000 crores. And now, people of Rajasthan, they very well understand that with the political motive and intent, they have not pumped up the pace in this implementation of Jal Jeevan Mission, because they were aware, if in Rajasthan, where the water is the largest and biggest issue, you have noticed yesterday in the field visits also, if every voter will be able to get water, drinking water through their taps in their homes, then Congress will never be able to come back in the power for next 50 years. So with the political motive, they did this PAP, and with this sin, they have given priority to their political motives over the thrust, over the प्यासे कंठ of the people, to get out of the thirsty people out of their crisis. They have given priority to their political intents and motives. कल जो सभा में हमने एक चीज़ बहुत सुनी, जो सारे लीडर्स बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भावी मिनिस्टर। हाँ। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेके? देखिए, जीत मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई संशय है। पिछली बार का चुनाव प्रतिकूलताओं से भरा हुआ चुनाव था। हम राजस्थान में सरकार से 3 महीने पहले बाहर हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। हमारे 8 में से 6 विधायक हार चुके थे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोटों का अंतर लगभग 1,50,000 वोट से ज़्यादा कांग्रेस के फेवर में था। मुख्यमंत्री के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी। सरकार की मशीनरी, अधिकारी, सभी लोग उसमें झोंक दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था, देश के लिए प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया और एक बड़े अंतर के साथ में, लगभग 2.25 लाख वोट के अंतर से हम विजयी हुए। इस बार तो सारी अनुकूलताएं, विधानसभा का चुनाव हम जीते हैं, 8 में से 7 विधानसभा हम जीते हैं। हमारा वोटों का अंतर अब उतना ही हमारे फेवर में है। और इन सब अनुकूलताओं के साथ साथ में देश ने ये समझ लिया है, मान लिया है, जान लिया है कि विकसित भारत अब बन सकता है, और विकसित भारत बनने की आधारशिला रखने के लिए इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चुना जाना आवश्यक है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब की बार कोई चुनौती कहीं भी कुछ इस चुनाव को लेकर के बची है। आपने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद एमफिल किया। आपको कई बार ऐसा भी कहा जाता है द फार्मर हु वोर जीन्स। तो पॉलिटिक्स कैसे हुआ, मतलब क्यों पॉलिटिक्स में आए आप? इट वाज जस्ट आई एम एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। अच्छा। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बना। सारे स्टूडेंट्स दोस्तों ने मुझे खड़ा करके, और
क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के साथ काम कर रहा था, तो दे वांटेड मी कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने चुनाव लड़ा, विद्यार्थी परिषद ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, मैंने चुनाव लड़ा, छात्र संघ का अध्यक्ष बना। सामान्यतः छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद में सभी लोग अपनी राजनीतिक सरजमीन की तलाश करते हैं, अध्यक्ष बनने के साथ ही, अध्यक्ष बनने के बाद ही। मेरे पास में भी तमाम अनुकूलताएं थी, लेकिन मेरे मेंटर्स ये चाहते थे कि मुझे समाज के लिए कुछ दूसरा काम करना चाहिए और मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करने के लिए कहा गया। मैंने 20 साल तक बॉर्डर्स पर काम किया जी। और बॉर्डर एरिया पे रहने वाले लोगों की जो बॉर्डर एरिया के निवासी होने के नाते जो नेचुरल ड्यूटी है टू वर्क एज ए सेकंड लाइन ऑफ सिविल डिफेंस, उसके लिए हमने काम किया, लोगों में इस भाव का जागरण किया। हमने इसके अतिरिक्त जो है पूरे एरियाज़ की मैपिंग की, वहाँ पर सब अनेक तरह की एक्टिविटीज़ के साथ में वहाँ के लोगों के साथ में जुड़ाव किया। बीएसएफ या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो जिस बॉर्डर पर है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, उनका जो है संबंध सहजता के साथ में सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों के बीच में बना रहे, उसके एक कड़ी के रूप में काम किया। उसका लाभ ये हुआ कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को हम और अधिक सुनिश्चित कर पाए। 20 साल तक उस कालखंड में मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी के दहरी पे भी पाँव नहीं रखा था। फिर मेरे मेंटर्स ने, विचार परिवार में हम सब लोगों के जो हैं मार्गदर्शक लोगों ने कहा कि अब तुमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो मैं जब 2014 में मुझे अवसर दिया गया था, उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में भी प्राथमिक सदस्य के नाते भी काम नहीं कर रहा था। मुझे तो संगठन के सिपाही के नाते जो काम दिया गया वो काम मैंने किया। और अभी भी मैं कई बार कहता हूँ कि आगे भी अगर संगठन ये तय करे कि अब मेरी उपयोगिता अगर किसी और संगठन में ज़्यादा है, बेहतर तरीके से मैं काम कर सकता हूँ वहाँ, या वहाँ रहने से देश को और विचार को यदि उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है, तो मुझे कहीं भी भेजा जा सकता है। मुझे वनवासी कल्याण परिषद में भेज दें, मुझे सेवा के किसी प्रकल्प में भेज दें, किसी और काम के लिए भेजेंगे। इसी उत्साह से, इसी ऊर्जा से, इसी संकल्प से, इसी लगन से, इसी निष्ठा से काम करूँगा, क्योंकि जहाँ भी काम करूँगा मुझे पता है मेरा लक्ष्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय। जब लीडरशिप चेंज हुआ राजस्थान में, आप लोग आपकी पार्टी जीत कर आई, तो काफ़ी लोगों को लगा कि अब आप होंगे चेहरा। खासकर इतने बड़े आप जाइंट किलर थे, आपने लोकसभा में भी हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो पार्टी ने आपको क्यों नहीं कंसिडर किया? देखिए, फिर मैंने कहा कि कौन व्यक्ति किस भूमिका में उपयुक्त है, देश के लिए किसकी उपयोगिता कहाँ अधिक है, दल के लिए किसकी उपयोगिता कहाँ अधिक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंत के पायदान पे आता है। लीडरशिप को तय करना है किसको कहाँ पे काम देना है, जिसको जहाँ काम दिया जाए वहाँ उसको काम निष्ठा के साथ में करना चाहिए, और जिसको जब जो काम मिला है वो निष्ठा के साथ में करना चाहिए। इससे आगे मुझे लगता है कि कहीं सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। काफ़ी लोग इसे कह रहे हैं जेनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, नए लोगों को एक तरह से पार्टी दे रही है अवसर। आप कैसे देखते हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में? होना भी चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता वो देश का गृह मंत्री बनता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और एक पहली बार का विधायक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हुआ सीधा भजन लाल जी की तरह मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें ऐसा संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर बढ़ती है। सदस्य बनाना, सदस्य को कार्यकर्ता बनाना, कार्यकर्ता को नेता बनाना, नेता को अवसर दे करके उसे बड़ा नेता बनाना, ये विधा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होती है। थोड़ा सा मैं बीजेपी स्टेट के बारे में बात करना चाहूँगी। हमने काफ़ी देखा है, काफ़ी वर्षों से इन फाइटिंग के बारे में बहुत मतलब सेंट्रल लीडरशिप भी कंसर्न रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? और ख़ासकर अभी हमने देखा जोधपुर में भी कई लीडर्स ने, कुछ ने आपके खिलाफ भी बयान दिए थे, तो किस तरह पार्टी उसको देख रही है? देखिए, वैसे मैं कहूँ लार्जर फ्रेम में भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव के साथ में काम करने वाली पार्टी है, और जब परिवार भाव में रहते हुए कुछ छोटे मोटे मतभेद किसी के बीच में हो सकते हैं, लेकिन मनों का भेद कहीं नहीं होता। और इसके और भी अतिरिक्त मैं अगर बात करूं जी, तो राजनीति का क्षेत्र जो है स्वतः स्फूर्त जो है वो कंपटीशन का क्षेत्र है, यहाँ स्वतः स्फूर्त प्रतियोगिता है। हर व्यक्ति एक महत्वाकांक्षा को लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, और अल्टीमेटली बहुत सारे लोग एक ही लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे मत जो है मतों के अंतर होना, छोटा मोटा जो है साम्य का अभाव होना, ये राजनीतिक क्षेत्र में कॉमन फिनोमिना है। ये है, था और रहेगा भी।
लेकिन अल्टीमेटली इन लार्जर पर्सपेक्टिव में जब हम सब लोग एक जगह पर आकर लड़ते हैं तब हम वयम पंचाधिक्षतम, हम जो है कौरवों और पांडवों के साथ में जिस तरह से कहा गया था कि अगर दूसरों से लड़ना है तो हम 100 से 105 हैं, अन्यथा हम 100 और 5 अलग अलग हो सकते हैं। तो हम अलग अलग विचारधारा, हमारी अलग अलग मत अंतर हो सकता है, लेकिन जब देश के लिए, जब दल की प्रतिष्ठा का बात है, हम सब एक होकर के चुनाव में और पार्टी के लिए काम करते हैं। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था कि आप स्टेट के प्रेसिडेंट बनेंगे राजस्थान में। वसुंधरा राजे, ऐसा कहा जाता है, नहीं चाहती थी, अब तो फिर आप बहुत नहीं पुरानी बने। बात हो गई है वो। 2018 का विषय है। मुझे लगता है कि अब तो उसके बाद में गंगा से इतना पानी बह गया है कि अब उसके बारे में चर्चा करना बेमानी हो गया। काफ़ी सारे ये भी देखा गया है कि बीजेपी में थाउजेंड्स की तरह लोग अलग पार्टी से आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो खुद इस पार्टी के हैं उनका मोराल इससे थोड़ा डाउन होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में हम हर जगह देख रहे हैं कि लीडर दूसरी पार्टी के ज्वाइन किए जा रहे हैं, और इससे आइडियोलॉजी पे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने में 5 लोगों ने मिलकर के पार्टी शुरू की थी। वहाँ से चलते 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 आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। जब कोई पार्टी इस कदर एक्सपेंड करती है तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आए हैं, वो सब लोग पहले किसी दूसरे पॉलिटिकली फ्री तो नहीं थे, कहीं ना कहीं से आए हैं जी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना बड़ा परिवार है, ये गंगा नदी के समान है। बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हैं छोटे छोटे स्रोत आकर के उसमें मिलते हैं, बहुत सारे रिवलेट्स मिलते हैं। अल्टीमेटली गंगा नदी विशाल रूप में उसको सबको समाहित करके चलती है और सभी लोग उसी में विलीन हो जाते हैं। कुछ लोग अगर विलीन नहीं हो पाएंगे तो सूरज के ताप से तप करके वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो अगर आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाया तो नहीं रहेंगे? नेचुरली वो उनका निर्णय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि रहेगा, जो व्यक्ति रहेगा, वो हमारे नेतृत्व के प्रति निष्ठा और हमारे ध्येय के प्रति, हमारे संकल्प के प्रति सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा, अन्यथा तो संभव नहीं होगा। 2024 का जो ये चुनाव हो रहा है, पीएम मोदी के फेस पर हो रहा है, वही एक तरह से ब्रांड है। अगर हम 75 इयर्स का एक जो अनरिटन रूल बीजेपी में है उसको देखें तो कुछ वर्ष बाद पीएम भी 75 के होंगे। तो आपको क्या लगता है 2029 में भी उन्हीं के चेहरों पे चुनाव लड़ा जाएगा? अभी तो हम 2024 की बात करें, 2029 में अभी 5 साल और है, उसके बाद में उस समय में देखा जाएगा। अभी क्यों इस विषय को लेकर के हम चर्चा करें। 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देश का नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, सबसे विश्वस्त चेहरा है। आज देश का गरीब, देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का किसान, सब उनको अपने अपने दृष्टिकोण से अपने एक गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में देखता है। युवा उन्हें अपने मेंटर के रूप में देखता है, किसान उन्हें अपने संरक्षक के रूप में देखता है, महिलाएं अपने भाई के रूप में देखती हैं। जिस दल के पास में इतना बड़ा व्यक्तित्व हो, मुझे लगता है कि उस दल को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी सारे 116 417 में से कैंडिडेट्स को जो सिटिंग एमपी से टिकट डिनाई किया गया, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो काफ़ी भारी संख्या में वोट लेकर जीत कर आए थे। राहुल कांसवां को अगर हम देखेंगे तो उन्होंने तो कांग्रेस ही ज्वाइन कर लिया। तो किस तरह से पार्टी ने पूरा ये इशू को देख रही है और क्या विनेबिलिटी इससे अफेक्ट नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा फौज में टू कीप द आर्मी यंग जिस तरह से काम होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में भी, जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति कोई भी पार्टी में आकर के काम करे, वो सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही रहे या उसी को मौका दिया जाए, ये संभव नहीं है। पार्टी तय करती है किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग है। अब उसमें कोई व्यक्ति की ये मेरे अधिकार को मानते हुए उस पर कि मेरे अधिकार पे हनन हुआ है और वो उससे आहत होकर के अगर रास्ते बदल ले, तो मुझे लगता है कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ मेल खाता है और न ही विचार के हमारा जो संकल्प है उसके साथ में मेल खाता है। कांग्रेस अलायंस खासकर कास्ट सेंसस और जॉब्स, इन सब की बात कर रही है। वो कह रही है बीजेपी राम मंदिर, टेररिज्म और इन सब बातों में उलझाना चाहती है। आपको क्या लगता है, आपका पोल प्लान क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आतंकवाद इस देश के लिए मुद्दा नहीं था? लोग घर से बाहर निकलते थे तब उनकी माताएं, बहनें, उनकी पत्नियां डरती थीं कि शाम तक घर लौट करके आएगा कि नहीं। देश में खुशहाली आए तभी देश में निवेश आएगा, देश में शांति होगी तभी देश में निवेश होगा तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप रोज़गार का मतलब सरकार की नौकरी तक ही सीमित है। पूरी दुनिया इससे बाहर उठ चुकी है और यदि विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ में काम करना है या देश को विकसित बनाना है तो इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा।
कांग्रेस पार्टी के इस मानसिकता के ठहराव के चलते ही कांग्रेस पार्टी आज इस दुर्गति में पहुंची है। नया सोचें, परिस्थितियों के अनुकूल सोचें और इस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले तीसरे टर्म में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी और दुनिया के बहुत सारे इस बात को विवेचना करने वाले लोग मानने लगे हैं कि अब दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने की तरफ जा रही है। अगले 25 साल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी। दुनिया के सारे विशेषज्ञ इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि भारत सुपर पावर बनने की दिशा में जा रहा है। जब आर्थिक दृष्टिकोण से भारत प्रगति करेगा, सामरिक दृष्टिकोण से प्रगति करेगा, तो भारत में रोजगार के अनेकों अवसर बनेंगे। और इसके अतिरिक्त भी देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है, 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर काम हो रहा है, क्या वो बिना रोजगार के अवसरों के बनता है? सड़क बनती है, भवन बनते हैं, पुल बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, वाटरवेज बनते हैं। उन सब में कितनी तरह का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होता है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत सतही स्तर पर बात करके लोगों की भावनाओं को जो है भावनात्मक रूप से आंदोलित करने का जो प्रयास है। अब साहब 75 साल की डेमोक्रेसी में देश के युवा भी इस विषय को जानते पहचानते हैं, तभी वो ये मानते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुद्रा कितना सक्सेसफुल हुआ। स्टार्टअप इकोसिस्टम में आज दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ देश कौन है? मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो भारत स्क्रैच पे होता था, आज दुनिया का टॉप 2 में आ गया है। डिफेंस इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आ गया। क्या वो सब चीज़ें बनती है उसमें रोजगार सृजित नहीं होता? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो लोग केवल फौरी तौर पर बयान देने के लिए बयान देते हैं या जिनका मानसिक ठहराव अभी भी उसी स्तर पर है, अब उनको देश जान और पहचान गया, देश की जनता भी जान और पहचान गई। इसीलिए 55 साल तक देश पर शासन करने वाले अब 55 सांसद जुटाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। मेरे बस कुछ आखिरी प्रश्न। आपने देखा होगा ज्योति मिर्धा जो नागौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, अरुण गोविल जो आपकी पार्टी के हैं, लल्लू सिंह, सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की एक तरह से बात छेड़ी है। जो कांग्रेस और अलायंस ये कह रही है कि 400 पार का जो ये नारा है ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना चाह रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए हैं, धारा 370 हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के हित में था। आर्थिक वर्ग को आरक्षण देने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, देश के लिए आवश्यक था। इसलिए जहाँ देश की आवश्यकता है, देश को के लिए भला है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, ये भारत के संविधान ने इसकी मैं ये तय किया है। भारत का संविधान कोई गीता जी की तरह तो था नहीं कि उसके जितना श्लोक हैं उतने ही श्लोक रहेंगे, उसमें आप एक खड़ी पाई बिंदु कॉमा की भी आप चेंज नहीं कर सकते। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था इसलिए की थी कि आने वाले समय में देश जिस तरह से प्रगति करेगा उसके अनुरूप देश के संविधान में यदि कोई बदलाव करने की आवश्यकता, उसकी प्रक्रिया तय की थी। अगर देश के हित में बदलाव करने की आवश्यकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? पहले भी किया है, अभी भी करेंगे। कांग्रेस के समय में भी हुआ है। कांग्रेस ने अपने समय में जो अब तक संविधान के 128 संशोधन हुए, उसमें क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुए थे? जी देखिए, मैं फिर आपको ये बात कहूँगा, एक स्यूडो फॉल्स नैरेटिव फ्रेम करने की कोशिश देश में की जा रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब देश में एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो अल्पसंख्यक समुदाय को देश से बाहर जाना पड़ेगा। किसी को जाना पड़ा? किसी को एक पिन चुभने जितना भी दर्द हुआ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ सरकार काम कर रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे पर काम कर रही है। देश को समग्र रूप से एक साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो ये फॉल्स नैरेटिव्स घड़ करके लोगों को उद्वेलित करके बांटना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। एक आखिरी प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगी, आप खुद राजपूत समाज से आते हैं, आपने देखा होगा गुजरात में एक पुरुषोत्तम रूपाला जी की एक टिप्पणी से काफ़ी जो समाज में एक रोष आया था। देखिए, किसी आदमी की व्यक्तिगत टिप्पणी को दल की टिप्पणी नहीं माना जा सकता। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विरासत का सम्मान करने वाली पार्टी है। और जब हम विरासत की बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत के इतिहास में से अगर क्षत्रियों का इतिहास निकाल दिया जाए तो किताब बहुत कम पन्नों की हो जाएगी। इसलिए निश्चित ही इस सनातन सी संस्कृति जिसके सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, नरेंद्र मोदी जी जिसके सम्मान को विश्व भर में प्रतिस्थापित करने के लिए कमिटेड है, उस सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों ने पीढ़ियां कुर्बान की है।
इसीलिए क्षत्रिय समाज की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी क्या दर्शन दोनों सामने रखते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में ये स्वाभाविक युति है। और इस युति को इस तरह के बयानों के माध्यम के आधार पर एक नैरेटिव खड़ा करके तोड़ा जा सके, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और क्षत्रिय समाज दोनों ही राष्ट्रवादी सोच और सनातन के पोषक हैं। हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बस एक आखिरी प्रश्न आपकी मिनिस्ट्री का, केन बेतवा प्रोजेक्ट है, काफ़ी समय से वो उस पर आगे नहीं बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, कहाँ फंस रहा है मामला? बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंडर की स्टेज चल रही है, क्योंकि आचार संहिता लगी रही थी इसलिए टेंडर फाइनलाइज नहीं किया जा सका। आचार संहिता के ठीक बाद टेंडर फाइनलाइज करके उस पर हम काम शुरू करेंगे। और कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस पे काफ़ी पैसा भी खर्च हो चुका है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, उस पे आपकी क्या राय है? दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जो 3 बैराजेज हैं उसमें से एक बैराज कोलैप्स हुआ है, उसका पिलर्स कुछ कोलैप्स हुए हैं, उसकी जांच चल रही है। और मेडीगड्ढा की जांच की कुछ प्रारंभिक रिपोर्ट्स भी आई है जिसमें टेक्निकल फेलियर्स की भी बात की गई है और साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन में भारी अनियमितताएं में इसकी भी बात की गई। पहले भी बाढ़ के समय में वहाँ सारा पावर जनरेशन सिस्टम जो है वो सबमर्ज हो गया था, वो भी एक टेक्निकल फेलियर था जी। इसके एक व्यापक स्तर पर जांच करके और इसके बारे में आगे उस जांच के अनुरूप कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद दिवेश सिंह गौतम।